میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے جو وہ روز بروز انگنت نعمتوں سے ہم سب کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے. اس نے آج یہ خوبصورت دن، یہ وقت، یہ لمحہ ہماری زندگی میں دیا کہ ہم اس کے نام کو جلال دیں، اس کی تعریف اور اس کی تعظیم کریں. آئیں یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں جس نے آج ہمیں موقع دیا، وقت دیا کہ ہم اس کے گھر میں آئیں، اس کی حمد و ثنا کریں اور اس کے نام کو جلال دیں. آج ہم کلام مقدس کے اندر سے آج ایک سٹوری پر غور کریں گے. میں اور آپ کو یہ تمام خادمین ہم چاہ رہے تھے کہ خدا ہماری کلیسیا کو برکت دے اور ہماری کلیسیا تھوڑی دلیر ہو گئے، کھڑے ہوں سارے نہ کام کرن. تھوڑی جی بارش آندی ہے کلیسیا ڈر جاندی ہے. ہم اتوار کو آپ لوگوں کا انتظار کرتے رہے ہیں لیکن کوئی بھی نہیں آیا. ایک کی سی کہ بارش ہوگی، کتے کھورنا جائیے، کتے کوئی پانی دے بیچے کوئی پھوڑے پھنسیاں نہ نکلان ہے گندے پانی سے کرتے پیسی عوام. لیکن بھائی صاحب اپنے کا انتظار کرتے رہے سارے ہیں، کوئی بھی نہیں آیا. تھوڑے دلیر ہو، اسی بھی تاڑے نال ہاں اور اسی جڑا بوجھ چکے آئے اساں انہوں مل کے چکنا ہے. آمین. تو آئے کلام مقدس میں سے میں جب ان کے پاس سے گیا تو میں تو 2-2:30 بجے تک خدا کے کلام کو دیکھتا رہا ہوں. بہت سے باتیں خدا نے کی لیکن میں کچھ اور مائنڈ کے ساتھ آیا تھا، کچھ اور جو رات کو کلام میں نے تیار کیا تھا. خدا دا روح کہندا ہے جو دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ دا ریئیکشن غلط آئے گا. ابھی وہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ دا معاملات الٹ ہو جائیں گے. لیکن یہ جو باتیں آج ہم سیکھنے والے ہیں یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. اس کے اندر آج کے اس کلام کے اندر کیا ہے کہ ہمیں فوراً کیا ہے ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ریئیکشن کی ضرورت نہیں ہے، ایکشن کی ضرورت ہے. ایکشن لین دی، ڈیسیژن لین دی ضرورت ہے. کئی لوگ منہ بنا کے سوچتے ہی رہتے ہیں، ان کی آندے نے ایکٹنگ ہی کرتے رہتے ہیں کبھی شاید وہ کام چل جائے لیکن کام چلتا نہیں، وہ ایکشن لین نہ چلے گا، وہ ڈیسیژن لین نہ ہوئے گا. تو آئیں میں آپ کو ایک سٹوری ہم مل کر سیکھتے ہیں بائبل مقدس کے اندر سے. پہلا سیموئیل اور اس کا 25واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے. بھائی آپ ایک مائک لے لیں، میں آپ کو حوالے بتاؤں گا، آپ نے سٹوری کو پڑھنا. پڑھے جی پہلی آیت سے غور کریں. آج کا کلام خاص میری بہنوں کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، اس میں بھائیوں کے لیے بھی میسیج ہے، لیکن آج خاص بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے آج کا پیغام ہے. چلیں جی پڑھیں. اور سیموئیل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے راما میں اسی کے تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی. یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا. اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا. یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا اور وہ کالب کے خاندان سے تھا. آمین. خداوند کا کلام پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے بڑی خوبصورتی کے ساتھ میری بہن نے اس حوالے کو پڑھا. میرے عزیز، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، جب سیموئیل
ये बात इससे शुरू होता है कि सैमुअल मर गया और सब इस्राएली एक जगह जमा हुए और इन्होंने क्या किया, उसे उसी के घर में क्या है, दफन कर दिया। अब दाऊद क्या है, दाऊद उठकर क्या करता है, दस्ते फरहान को चला जाता है, क्योंकि दाऊद की और जो वक्त का बादशाह है इसके अंदर इख्लाफात हैं, इनकी बनती नहीं है, इनकी क्या है, बादशाह इनकी एक बात नहीं है, और वो जो वक्त का बादशाह है वो इससे हसद करता है। ये उधर को डाबदा मारा की करता है, अभी बादशाह नहीं बना, उधर तो डाबदा मारा की ये दस्ते फरहान में चला जाता है। और जब वो वहां जाता है तो वहां पर माउन में एक शख्स रहता था जो बड़ा अमीर शख्स था, और वो पूरे किरमल एक इलाका है कि वो उसके अंदर बड़ा अमीर तरीन आदमी है, और उसके पास लिखा है कि 1000 भेड़ बकरियां हैं, 3000 भेड़े हैं, और काफी अमीर आदमी है। उस वक्त के अंदर जब किसी के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां होती हैं, उससे बड़ा अमीर तरीन आदमी समझा जाता था कि ऐसे बड़े वसाइल ने, बड़ा अमीर शख्स है। आज हम जब देखते हैं, घर को देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, और बड़े मामला कहने बड़ा अमीर आदमी है, लेकिन उस दौर में ये बड़ा अमीर आदमी था क्योंकि इसके पास बड़ी भेड़ें थी, बकरियां थी। तो ये क्या कर रहा था कि अपनी भेड़ों के बाल कुतरा रहा था, क्योंकि ये मौसम में था कि भेड़ बकरियों की ऊन क्या है, उतारी जाती है, और ये तमाम मामलात वहां पर हो रहे हैं, और इसके घर में लोग जमा हैं, मजदूर जमा हैं कि जो ये काम कर रहे हैं। और इस शख्स का नाम नबाल है, और इसके नाम का मतलब है बेअदब, बेवकूफ, हमाकत से भरा हुआ, कि जिन्हों बिल्कुल ही समझ नहीं है। और इसकी बीवी का नाम है क्या, एबी जेल। इसकी बीवी का नाम है एबी जेल, और जिसका नाम का मतलब है खूबसूरत। ये बड़ी खूबसूरत थी, और इसके नाम का मतलब है समझदार, कि बड़ी अक्लमंद औरत है, कि खुदा ने इन्होंने ना लिखी है, बड़ी अक्ल दी हुई है, बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। लेकिन जरा ऐसा शोहर है, उसका नाम नबाल है, और नबाल के नाम का मतलब भी है बेवकूफ। आज जब हम अपने बच्चों के नाम रखते हैं ना, तो बड़े सोच समझ के नहीं रखते, एवं सीधे पुठे नाम रख सकते हैं। किसी का नाम सूजल रख दिता, अजी सूजल बड़ा सोहना सी है। हमारी फैमिली में एक बच्चे का नाम लाबन रख दिता, तो मैं को एक ही किया जी, मैं क्या एक पैसा बाइबल में है, तो मैं क्या बाइबल जिते नबाल भी है, बाइबल जिते होर बड़े नाम है वो नहीं किसी रख दे। जो लाबन है वो बुत परस्त है, बिलीवर नहीं है, वो तो बुत्ता की वर्शिप करता है। उन्हें बकायदा एक मेन्यू सजाया हुआ बुत्ता का, बुत खाने के। तो हम आज सोचते नहीं है कि हमारे नाम हमारी पर्सनैलिटी पर असर करता है। गौर करें इस बात को, इसलिए नाम रखने से पहले सोचिया करो। कई बार इंज भी होता जे बाजी तो मेरे देखो, कई बार इंज भी होता है, सही ना रख के एक निकनेम रख देते हैं। जी राम जाने आ, मैं किसी के घर गया तो उन्हें आवाज मारी राम जाने, मैं क्या हाँ फिल्म लाई जे कोई अंदर कहते नहीं साढ़े मुंडे का नाम है, कर लूंगा। गौर करें, अभी दुआ के लिए भाई को बुलाया, और मैंने हमें सही नाम का नहीं पता, मैंने इनसे पूछा इनका सही नाम क्या है। तो नेक्स्ट कभी भी हम इन्हें दावत देंगे दुआ के लिए, तो हम इनके सही नाम से पुकारेंगे। इनका नाम है रहमत है। तो हमारा नाम जो है ना हमारी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है, असर करता है। इसलिए बच्चों के कभी ना रखन लगे सोच समझ लिया करो, खादमा के नाल मशावरत कर लिया करो। हैं कई बारी हुंदा है तो दादा रखेगा, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਕੀਰ ਮਸੀਹ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਕੀਰ ਮਸੀਹ। ਦੱਸੋ
फकीर का की मतलब मंगण वाला है फकीर के जगह जगह जगह। इसीलिए नाम रखने से पहले सोचा करो एदा भी नाम नबाल रख देता जिसका मतलब ही है अहमद बेअदब जिन्हों अकल कोई नहीं बेवकूफ आदमी। और ये मैं तुम दसा कि नाम पर्सनैलिटी पर असरअंदाज होता है, इसका नाम इसकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हुआ। और जो एपीजेल है इसका नाम भी इसकी पर्सनैलिटी पर असरअंदाज हुआ। इसने एक बड़ा काम किया है और ये बाल कतरा रहा है। और दाऊद 600 जवानों के साथ, एक स्टोरी है पूरी लंबी चैप्टर, इस 25वें बाब को पढ़े, बड़ा मजा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं यहाँ पर 25वां पूरा बाप, मेरे पास टाइम नहीं, अगर मैं इसको पढ़ूंगा और वो टाइम मेरे हाथ से निकल जाएगा। मैं बहुत सारी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं वैसे आपको ये स्टोरी बताता हूँ। वे दाऊद 600 जवानों के साथ दस्ते फरहान में जाके छुप गया है, रह रहा। और इसने सुना कि नबाल अपनी भेड़ों की ऊन उतार रहा है, बाल कतरा रहा है। तो इन्हें की किया, अपने 10 जवानों को कहा कि जाओ किरमल में जाओ, उठे एक शख्स है नबाल कि मेरा नाम है, मैं बड़ा मशहूर हाँ, लोग मेरी इज्जत करेंगे। और इसने कहा कि मेरा नाम लेना, मेरा सलाम कहना, तो फिर मेरा नाम लेना कि सानू दाऊद ने कले आए, फिर तुम ना नहीं करेगा। तो उन्होंने कहना जो कुछ, कोई डिमांड नहीं है कि जो कुछ तेरे हाथ में आए वो सानू दे दे, साडे ते करम दी नजर कर। बड़े अदब के नाल दाऊद कहना कि तेरे बेटे दाऊद ने क्या किया थे। अब ये 10 जवान जब उसके पास जाते हैं तो कहते ने कि हमें दाऊद ने भेजा है। और कहता दाऊद कौन है, कैसी हमाकत है। वो कहता दाऊद कौन है, यसी कौन है। ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, कौन है ये सीधा बता। हालांकि दाऊद की शौहरत है, इसने जाति जूलियत को मारा है? आगे चल के इसकी बीवी इन तमाम बातों का जिक्र करती है। और इसने अपने नाम जो नबाल है, बेअदब है, हमाकत, इसने बेअदबी के साथ कहा कि दाऊद कौन है, मैं दाऊद को नहीं जानता, ते वापस चले जाओ। अब वो जवान क्या हुआ, उल्टे पांव दाऊद को चले गए, फिर के चले गए। उन्हें क्या ला भाई, उन्हें तो मैनू इंज कहा था कि दाऊद कौन है, मैं क्यों अपना माल उन्हें दवा, मैं क्यों यह काम करा। दाऊद 400 जवानों तैयार करता है, तलवार कस लो अपनी। दाऊद अपनी भी तलवार ले लेंदा, कहता सुबह की रोशनी तक ऐसा एक भी लड़का जिंदा नहीं रहेगा, मैं सारे कत्ल कर दिया। अब हुआ क्या कि इसने ये हमाकत की और ये तमाम चीजें ये उस वक्त हुई। और क्या हुआ कि दाऊद ने जब ये दस्ते फरहान में था तो इसने क्या किया, ये नबाल की भेड़ बकरियां उधर थी और इसने उसकी हिफाजत की। और ये जवान आके उन्होंने यही स्टोरी सुनाते ने, नबाल नूं कहंदे ने वे असी जिन्नी देर उत्थे रहे हैं, असी तेरी कोई चीज गुम नहीं हुई, असी इन्हां दी हिफाजत कीती, असी जंगली जानवरां तो इन्हां दी हिफाजत कीती, असी इहदे दरमियान की बन के रह गए, दीवार बन के खड़े सा, तेरा सारा माल महफूज रहा। हुण तू साडी गल मन ते की तेरे हाथ जो कुछ आंदा दे दे, उसने कुछ भी नहीं दिया। और उसके जवानों ने, नामी आज पढ़ते हैं, उसके जवानों ने जाकर क्या कहा, सो दाऊद के जवानों ने जाकर नबाल से दाऊद का नाम लेकर ये बातें कही। नबाल ने दाऊद के खादमों को जवाब दिया, कौन है यसी का बेटा कौन है। उन दोनों बहुत से नौकर ऐसे हैं जो अपने आका के पास से भागे जाते हैं। मैं अपनी रोटी और पानी सिपिए जो मैंने अपने बाल कतराने वालों को लिए तैयार किए हैं, मैं क्यों दूं, मैं क्यों इन्हें दूं। ये सारे मामला तो मैं ना लिए तैयार किए ने, जेडी मेरी खिदमत कर रहे हैं।
और वो कहता है 100 दाऊद के जवान उल्टे पांव फिरे और लौट गए और आकर सब बातें उसे बताई। तब दाऊद ने अपने लोगों से कहा अपनी तलवारें बांध लो। ये सारे ने अपनी तलवारें बांध लिया। ये 400 आदमी थे। और जो बात है 14वीं आयत के अंदर वो क्या कहता है, गौर से सुने। अब यहाँ पर एबीजेल क्या है, एक्शन में आने लगी। बंदे नबाल ने तो बेवकूफी कर दी थी, है? अपने लिए 400 बंदे तैयार करवा ले, लेकिन जब ये बात उसकी बीवी को पता चली तो वो फौरन एक्शन में आई और डिसीजन लिया। आज हमें फौरन एक्शन में आने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है। कई मर्तबा हम डिसीजन लेने में बड़ी देर कर देते हैं और उसका बाद में हमें नुकसान उठाना पड़ता है। बातों सोचने यार उस वक्त एक काम कीता होंदा तो शायद काम बन जाता। हुआ क्या, लिखा है 14वीं आयत में, और जवानों में से एक ने नबाल की बीवी एबीजेल से कहा कि देख, दाऊद ने बियाबान से हमारे आका को मुबारकबाद देने को कासद भेजे और वो उन पर झुंझलाया। वो कहता उन्हें मुबारकबाद भेजन वास्ते कि तेरा सब कुछ महफूज है, उनको बाल कतरवा रहे हैं, तेरिया भेडा महफूज ने, मुबारकबाद दी है। लेकिन देख, साडा आका ने उदी इंसल्ट की थी, गुस्से में आया है, हमाकत से उसे इनकार कर दिया है। लेकिन इन लोगों ने हमसे बड़ी नेकी की है। अब ये कासद वो तमाम बातें जो दाऊद के लोगों ने नबाल के मुलाजमों से, नबाल के साथ की, ये तमाम बातें वो उसकी बीवी को बता रहा है। हो सकता है कासद को पता हो कि ये हम के बीवी ते समझदार है, बुढ़ी ते अकलमंद है। कई मर्तबा हमारे घरों में भी ऐसा ही होता है, कोई काम होए ना तो लोग बंदे हम करते बीबियां जाके मैंने कहा जी तू कमेंगी तो समझेगा, इन्हें साड़ी नहीं सुनी। तो कई बारी बंदे, ज्यादातर बंदे सुनते ही कुड़ियां दी, क्योंकि कोई दुखती रग बड़ी होंगी है ना, कोई समझ होंगी है वे कितों इनू कहना तेने मान जाना है, किथे इनू मोल्ड करना। अच्छा चल ठीक है, तू कहनी है तो चले जाते हैं। जे बुढ़ी ने कहना नहीं जाना तो उन्हें कहना नहीं जाना, नहीं 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 हो ही नहीं सकता, मैं लड़ाई पानी है। तो ये कासद ने दैनी गल घर का मुलाजम है, पूरे माजरा वेंदा होना, उन्हें फौरन जेड़ा है औरत नूं दस्सिया। उन्हें कहा ए वेह ने की काम कीता ही, दाऊद ने मुबारकबाद भेजी है, उन्हें बियाबान दे विच साडे नाल बड़ी नेकी कीती है, हमारा नुकसान नहीं हुआ, मैदानों में जब तक हम उसके साथ रहे हमारी कोई चीज गुम ना हुई, असी महफूज रहे हैं। बल्कि जब तक हम उसके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे वो दिन रात हमारे लिए गोया दीवार था, वो साड़ी हिफाजत करता रहा, दीवार बन के खलोता रहा। असीं तो बेफिक्र सां, असीं तो बेफिक्री दे विच सां, वो साड़ी चीज़ां दी हिफाजत करता रहा, कोई चीज हमारी गुम नहीं हुई क्योंकि ये हमारे साथ था। सो अब सोच समझ ले तू क्या करेगी, क्योंकि हमारे आका और उसके सब घराने के खिलाफ बदी का मंसूबा बांधा गया है, क्योंकि ये ऐसा खबीस है, ऐसा खबीस आदमी है कि कोई इससे बात नहीं कर सकता। वो कहता हुण देख ले तू की करेगी, सोच समझ ले कि तू की डिसीजन लेगी। इन्हें बाल ने ते काम खराब कर छड़े, इन्हें ते ओदी इंसल्ट कर छड़ी आ, ए ओदे ते झुंझलाया ही, इन्हें ओनू ना कर दित्ती, ओने नेकी कीती। कई दफा असी भी लोकां दी अपने असी लोग नेकियां भुल जाते हैं, केड़ा की नुकसान कीता, असी भी बड़ा कुछ कीता है, इसने उसके साथ नेकी की है। तो कभी भी कोई नेकी आपके साथ हो, उसका नेकी को कभी भी ना भूलो। जो आपके बुरे हालात में
बुरे वक्त में आपके काम आया, हमेशा उस शख्स को याद रखें, क्योंकि वो आपके बुरे हालात में आपके साथ था। तो जब आपके अच्छे हालात हो तो आप अपने अच्छे हालात में उसका कभी साथ ना करें, हैं? तो ये मकासद ने क्या सोच लिया हम की करना है, हैं? ऐसा खबीस देखो मुलाजिम ने भी